in a consanguineous relationship. Her blood group is not known to her. Gravda 4 para 3 previous 2 cesarean section with no with one alive issue. Last childbirth is 7 years back. Her last menstrual period is on 15 January 2021, which making her period of gestation 39 week and expected date of delivery is 22nd September 2021. मैम ये मेरे एग्जाम का केस है इसलिए डेट्स बैक की हैं. ठीक है. She, she is resident of Murray, that is 1 hour distance, 1 hour drive from the Index Hospital. She admitted in the Index Hospital on 13 September 2021 through outpatient department. Hmm. She presented with gestation amenorrhea of 39 week to get time for the delivery, and there was pancytopenia on complete blood count. Hmm. My patient conceived spontaneously while having regular menstrual cycle, practicing no contraception. She assumed herself to be pregnant when she missed her periods and confirmed her pregnancy by urinary pregnancy test at home when 2 weeks were overdue. There is no history of excessive nausea, vomiting, folic acid intake, fever, rash, flu-like symptoms, pain lower abdomen, burning micturition, abdominal vaginal discharge, vaginal bleeding, and dating scan and blood and urine test in the first trimester. She Hmm. did her first antenatal visit to the gynecologist at fifth month after gestation, where her blood pressure was checked and ultrasonography was also performed. BP was normal, and she was informed single viable intrauterine pregnancy. And she appreciated fetal movement at fifth month of gestation, and anomaly scan was not done at 20 week. She was advised supplement that she took occasionally, and however there was no complication related to it. She was satisfied with the fetal movement and increase in size of abdomen according to period of gestation. No history of easy fatigability, increase in thirst, appetite, urinary frequency, headache, blurring of vision, epigastric pain, swelling of legs in the second trimester. There is a history of oral glucose tolerance test at 7th month of gestation that was normal according to her, and she got tetanus prophylaxis at 7th and 8th month. There was no history of pain, lower abdomen, vaginal water leakage, vaginal bleeding in 8th and 9th month. She visited to the outpatient department of the Light Hospital to get time for the cesarean section. Here in the hospital, blood, urine test, and ultrasonography have been performed, and her blood complete pictures was found disturbed. And however, there was no history of oral discomfort, oral ulcer, bleeding from gums, easy and bleeding from gums or any other side, easy bruisability, headache, blurring of vision, increase in blood pressure, fever, any urinary problem, numbness of feet, and she was given some intramuscular injection for lung maturity, most probably a steroid shot, and further plan have not been discussed with her. She is Gravda 4 Gravda 4 para 3 previous 2 cesarean section and 1 live issue. She conceived spontaneously 11 years back. It was term pregnancy delivered by spontaneous vaginal delivery by traditional birth attendant. It was difficult, prolonged delivery, and baby was average weight, diagnosed with delayed cry and early neonatal death in after 3 hours of delivery. And a second pregnancy was 10 years back, spontaneous term pregnancy, no antenatal complication, delivered by cesarean section in the government hospital under spinal anesthesia. No intrapartum complication, but it was unrelated death after 4 days at night due to milk aspiration, most probably, and it was average weight and not examined by the pediatrician. Her third pregnancy was 7 years back. It was a spontaneous term pregnancy delivered by cesarean section under spinal anesthesia in the government hospital. No antenatal, intrapartum, postpartum complication. Baby is healthy, alive and healthy, and breastfed vaccinated. No, and alive and healthy. And she menarche at the age of 13.
with regular menstrual cycle. She used to bleed for 4 days after every 28 days, and no history of pain due to menstruation, intermenstrual bleeding, pain during coitus, post-coital bleeding. Couple used a condom for contraception method. Pap smear never taken. There is no history of diabetes, hypertension, cardiac disease, renal disease in her and her family, and there is history of previous two cesarean sections regarding surgical history, and she is non-smoker, non-addict, with normal sleep and appetite, urine, bowel habit. She live in their own house. Necessities of life met with ease. Her husband is a driver. On general physical examination, a young lady sitting comfortably on couch answering my question cooperatively with BMI of 26 kilogram per meter square. Her pulse is 80 beats per minute. Her blood pressure is 120 by 80 millimeter of mercury. Temperature is 98.6 pound at respiration 16 breath per minute. Pallor jaundice sinus clubbing thyroid is not enlarged. Accessible lymph nodes are not palpable. And breast is bilateral symmetrical, no mass palpable inside. Bilateral vesicular breathing, no added sound. Lung bases are clear. Apex within the fifth intercostal space. First and second heart sound is audible, no added sound, and no sacral pedal edema. On abdominal examination, on inspection, abdomen is protuberant with central umbilicus, and there is there is striae and scar mark is present. No prominent remains and visible pulsation. Abdomen is soft, non-tender, and superficial deep palpation. Symphysiofundal height is 37 centimeter longitudinal lies. Phallic presentation like seems to be adequate clinically, and estimated weight is no, 2.5 kilogram per meter square, and her fetal heart rate is 140 beats per minute. सिम्फिजियो फंडल हाइट आपने कितनी बताई? 37 centimeter. ओके, अच्छा, समराइज करो अब इस केस को. Yes, ma'am. 30 years, grabbed of 4, para 3, previous 2 cesarean section with 1 alive issue. Last childbirth is 7 years. At 39 weeks with the at 39 week with the pancytopenia. And her symphysiofundal is 37 centimeter. Her मैं इन्वेस्टिगेशन बता दूं? अभी आप सिर्फ समराइज करें, अभी उसमें वो इन्वेस्टिगेशंस नहीं आएंगी. जी. And symphysiofundal height is 37 centimeter long. Phallic presentation came for the time for elective cesarean section. अब ये जो पेशेंट है ये आपका एग्जाम केस है और जी आपने बैक डेट्स के हिसाब से जो हिस्ट्री उस वक्त ली वो आप बता रहे हो, ऐसा ही है? जी मैम, उस वक्त पेशेंट को एक्चुअली कुछ भी नहीं था, सारे उसके ठीक टेस्ट, है, उसको कोई साइन सिम्टम नहीं थे. ठीक है. उस वक्त पेशेंट 39 वीक्स पे ही आपके पास प्रेजेंट की, जी, नॉट? बाय LMP जो मैंने काउंट की थी. ठीक है. पेशेंट ने खुद आपको बताया कि उसकी सीबीसी पे पैनसाइटोपिनिया था. वाज शी एजुकेटेड एनफ? नहीं मैम, यही तो बात है कि उसने मुझे कहा, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ये थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ऑपरेशन के लिए आई हूँ. अब ओके. जब उन्होंने मुझे टेस्ट दिए पैनसाइटोपिनिया के, सारे तीनों सेल लाइन डिक्रीज थी, तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में मैंने फिर साथ में ये डाला कि CBC पे पैनसाइटोपिनिया है. नहीं, देखो, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वो है जो पेशेंट आपको बताता है. If the patient is totally asymptomatic and this can happen with pancytopenia even, क्योंकि ये बिल्कुल लेट इन प्रेगनेंसी ये इसका डायग्नोस हुआ, तो आपने इसको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में और उसकी हिस्ट्री में भी डाला कि पेशेंट ने बताया है कि पैनसाइटोपिनिया है. अब मैम उन्होंने मुझे टेस्ट दिए थे. इन्वेस्टिगेशंस. मैम उन्होंने मुझे टेस्ट दिए तो पीछे मैं दोबारा पेशेंट के पास गई, उसकी साइन सिम्टम, फोलिक एसिड और उसके विटामिन B12 के जो सिम्टम्स होते हैं ना, साइंस होते हैं, वो पूछने के लिए दोबारा गई उसके ठीक पास. है, ठीक है, वो तो आई एग्री विद दैट. वो आप अगर आपको कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन मिल जाती है जिस पे आपको लगता है कुछ और पूछने की जरूरत है तो उसमें कोई मसला नहीं होता, वो आप पूछ सकते हो. मैम इस लेकिन तरह आप का पेशेंट हो कि वो सिनेरियो खुद ही, एग्जामिनर सिनेरियो खुद ही बदल दे और पेशेंट की हिस्ट्री और वो मैच ना कर ऐसा रहा हो. हो सकता है. देखो, सिनेरियो तब ही बदला जाता है जब उसकी गुंजाइश हो, यानी पैनसाइटोपिनिया के साथ भी तो पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है.
एंड हाउ डू यू नो कि पेशेंट ने सिनेरियो चेंज, वो एग्जामिनर ने सिनेरियो चेंज कर दिया? ये तो आप एज्यूम कर रहे हो ना कि जी प्रोबेबली पेशेंट वाज एसिम्प्टोमेटिक, सो क्योंकि पैनसाइटोपिनिया उस तरह से अगर होगा तो उन्होंने बताया होगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत रद्दो बदल तो फॉर डिस्कशन पर्पज हो सकता है, लेकिन पैनसाइटोपिनिया वाली पिक्चर एज इट इज खुद से बना के अमूमन नहीं दी जाती अनलेस द पेशेंट हैज दैट रिपोर्ट। अब लैब मैम एरर हो जाए वो एक और चीज है, लेकिन अमूमन एग्जाम में लैब एरर की भी गुंजाइश नहीं होती। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इन्वेस्टिगेशन एज सच, वही है और उसी पे आपने डिस्कशन भी करनी होती है। तो इसकी जो पैनसाइटोपिनिया वाली जो चीज है वो आप पेशेंट ने सिम्टम नहीं दिए, वो आपने तो बाद में जस्टिफाई करना है ना कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक था, लेकिन आप ये चीज उसकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में नहीं बताओगे, क्योंकि इसने फिर टोटल आपकी जो है वो सारी चीजें चेंज कर दी। क्योंकि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन इफ यू आर आस्किंग फॉर सर्टेन सिम्टम्स रिलेटेड टू पैनसाइटोपिनिया, ये तो बाद में होने वाली इन्वेस्टिगेशन है ना। इनिशियली तो आप पेशेंट को जज कर रहे होते हो ऑन हिस्ट्री अलोन, आप उससे बात करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोज करते हैं। बट व्हेन आफ्टरवर्ड्स यू एनकाउंटर अ सिचुएशन जैसी इसमें है कि ऑल ऑफ अ सडन यू कम टू नो दैट द पेशेंट इज हैविंग पैनसाइटोपिनिया, तो उसमें ऑलरेडी आपने हिस्ट्री तो उसकी फॉलिक एसिड इनटेक और बाकी सारी चीजों की ले ली, ठीक है। और क्लिनिकली पेशेंट इज नॉट पेल, जो आपने मुझे बताया जी मैम कि पेशेंट पेल भी नहीं है। नहीं था। तो इसलिए जो है वो इसमें हर्ज कोई नहीं है कि आप ये रिपोर्ट जानने के बाद पेशेंट से कुछ और चीजें पूछ लो और उसको बता दो, लेकिन उसमें फिर आपको ये जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। अब इसमें पैनसाइटोपिनिया की कॉजेज तो बहुत सारी हो सकती हैं, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, फीवर्स भी हो सकते हैं, कोई ड्रग इनटेक भी हो सकता है, और इसमें फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी हो सकती है, वो सब चीजें इसमें हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आपने उससे पूछ लिया उसमें कोई मजायका नहीं है, बट दिस शुड बी मेंशन्ड अलोंग विद द इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। और उसमें फिर आप जस्टिफाई करोगे कि इसमें एसिम्प्टोमेटिक ये क्यों है। तो इसमें अब आपने टेस्ट कौन कौन से करवाए, इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपने क्या क्या करवाई? जी मैम baseline including blood group that was A positive and हम्म, complete blood count with हम्म, date including hemoglobin in gram per deciliter that was 9 gram and red blood cell indices including MCV that was 116, MCH that was 38 and MCHC that was 33. हीमोग्लोबिन कितनी बताई है इसकी आपने? 9 gram. 9 ग्राम, ठीक है। और आरबीसीज, ब्लड सेल काउंट? आरबीसी जी रेड ब्लड सेल थे उनके 2.27 मिलियन कम अच्छा, थे। ठीक है, ठीक है। और और मैंने टीएलसी लिया, उन्होंने 3000 दिया। क्या चीज? टीएलसी टीएलसी लिया, टीएलसी वाज टीएलसी 3000। 3000, प्लेटलेट 64,000, हम्म, पीटीए पीटीटी एंड आईएनआर मैंने लिया था, उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल है। हम्म, और इससे मैंने सीरम फेरेटिन मांगा था, उन्होंने कहा वेटेड है। हाँ। और सीरम फिर फेरिटिन का क्या था? अवेटेड रिपोर्ट, अवेटेड? सीरम फेरेटिन अवेटेड था, नहीं दिया ठीक रिपोर्ट। है, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा मैंने उनसे ले रही थी कि रेड ब्लड सेल फोलिक एसिड लेवल जो होता है वो तो ये कहते हैं कि रिलायबल नहीं होता, तो मैंने फास्टिंग हम्म, रेड ब्लड फोलिक एसिड लेवल मांगा। तो हम्म, बाद में जब डिस्कशन में वो मुझसे पूछ रही थी कि आपने फास्टिंग आपको चाहिए या फोलिनिक एसिड चाहिए हम्म, आपको। हम्म, मुझे अच्छा। मैंने जहाँ से पढ़ा था वहाँ तो लिखा हुआ था कि फास्टिंग कराना चाहिए, फोलिनिक एसिड का हम्म, मुझे कंफर्म नहीं था हम्म, कि कौन सा कराना है एग्जैक्टली। और फिर इसके अलावा मैंने उनसे वायरल मार्कर लिए, नेगेटिव थे, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन नॉर्मल था, और हम्म, 1 आवर पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल था, ओजीटीटी भी हम्म, उनसे लिया, वो भी नॉर्मल था। हम्म, और इसके बाद मैंने उनसे लिया कि डेटिंग स्कैन विद डेट दैट वाज नॉट अवेलेबल, एंड देन एनोमली स्कैन विद डेट दैट हम्म, वाज आल्सो नॉट अवेलेबल, एंड रिसेंट स्कैन पे उन्होंने मुझे बीपीडी और फीमर लेंथ दी थी, हम्म, ताकि प्लेसेंटा लाकर बिल्कुल ठीक था। हम्म, बीपीडी फीमर लेंथ से जो मैंने निकाली तो वो 37+1 थी, रिसेंट स्कैन के मुताबिक 37+1 थी, एल एम पी 39 वीक थी। ठीक है।
And she जी was sure of dates. जी She was sure of her LMP. जी वो उसने कहा कि मेरे रेगुलर साइकिल थे और कॉन्डोम यूज कर रही थी। ओके, अब इसमें जो चीजें हैं, बेसिकली जो डिस्कशन आपकी इसमें चलेगी, 1 मिनट बेटा, मैं जरा 1 मिनट एक कॉल अटेंड कर लूं, फिर आपसे बात जी करते हैं। जी जी, यस मैम। अच्छा, इसके अलावा कोई और किसी टेस्ट की जरूरत है? फिर हम आगे चलते हैं। मैम मैंने पीटीए पीटी करा लिया था। ठीक है। और लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं उसमें, जैसे अगर हमने उसको हेल्प या डीआईसी या प्री हम्म एक्लेम्पशिया को हमने रूल आउट करना है, और एलडीएच। हम्म, और अब मैंने इसमें यू हैव टू गो बैक टू बेसिकली कि इसमें रीजन फॉर पैनसाइटोपिनिया क्या होती हैं, क्योंकि उस रीजंस के हिसाब से फिर आपकी टेस्टों की जो एक बेसिकली डिटेल है वो सामने आती है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी डिस्कस्ड विद द कॉजेस ऑफ दिस पैनसाइटोपिनिया के इस पेशेंट में ये वाली सेल लाइन सारी की सारी कम क्यों है। सेकेंडली फिर हम इसको अब इस 39 वीक्स पे हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, यस ये मैम। दो चीजें हैं जो कि इसमें करनी है। तो अपेरेंटली what may be the causes for this disturbed all cell lines on CBC? मैम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसमें आ रहा है, तो हम्म मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का और साथ में पैनसाइटोपिनिया की पिक्चर है, जिसमें मेजर काजेस होते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एक्यूट माइलर्ड ल्यूकीमिया होता है, उसके बाद आप इन्फेक्शन या क्रोनिक डिजीज या बोन मैरो का प्रॉब्लम होता है। बट तो व्हाट इसमें हमें उसमें सीबीसी पिक्चर आपको शो क्या कर रही है? Which मेगालोब्लास्टिक एनीमिया शो कर megaloblastic रही है, जिसमें leukemia या क्या? Megaloblastic anemia. So what जी else you will look for? एक तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी तो आपने बता दी, दूसरी विटामिन बी ट्वेल्व क्रॉस होती फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी तो ये सारी पिक्चर आएगी। है, And फोलिक it एसिड can lead, डेफिशिएंसी एंड हाँ, विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी होती है। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में से फॉलिक एसिड, विटामिन बी डेफिशिएंसी एंड द आयरन डेफिशिएंसी, ऑल आयरन डेफिशिएंसी तो सिर्फ अनीमिया ही करेगी, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, but जी all others can lead to pancytopenia if that is severe enough to suppress the bone marrow functions. But जी what else can cause this disorder? मैम पैनसाइटोपिनिया के जी काजेस जी, कुछ। हम पैनसाइटोपिनिया की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जी आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि अगर इसकी ये पिक्चर आ गई सीबीसी पे पैनसाइटोपिनिया वाली, तो इसमें जी क्या कॉजेज होती हैं, उन कॉजेज को आपने रूल आउट करना है बाय इन्वेस्टिगेशन, जी क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन उसकी उसके कॉजेज को रूल आउट करने के लिए करोगे। जी मैम, इसमें बोन मैरो सप्रेशन या इन्फेक्शन होता है, एक्यूट माइलर ल्यूकीमिया हो सकता है, डेंगू में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। तो इसमें हम, जैसे मैंने फोलिक एसिड का टेस्ट कराऊंगी और विटामिन बी ट्वेल्व और का टेस्ट भी होता है, वो कराना होता है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए डीऑक्सीयूरिडीन टेस्ट या मिथाइल डोपा वाला टेस्ट होता है, वो कराना होता है, या फिर ये बोन मैरो बायोप्सी करा सकते हैं। उससे भी पहले और कुछ? मैम ये मेरे माइंड में नहीं आ रहा। हम्म, मैडम कोई ड्रग्स तो नहीं ले रही? जी मैडम पेशेंट से पूछेंगे कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रही? बिल्कुल, ड्रग का इस्तेमाल इसमें हो सकता है, सर्टेन ड्रग्स, ठीक है। और
और मैडम वायरल इन्फेक्शन भी तो पैनसाइटोपिनिया बिल्कुल करवा वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। मैम उसको वायरल मार्कर टैग। वायरल इन्फेक्शन में से कौन से ज्यादा कल्प्रिट हैं फॉर दिस पैनसाइटोपिनिया? मैडम डेंगू। डेंगी इज वेरी कॉमन कॉज फॉर पैनसाइटोपिनिया, जिसमें प्लेटलेट काउंट भी लो हो जाते हैं, टीएलसी भी इसमें बहुत कम होता है, एंड हेमोलिसिस और आरबीसीज भी कम हो जाते हैं। सो डेंगू भी इसमें करवाने की जरूरत है। और मलेरिया का कराएंगे मैम? मलेरिया मलेरिया अमूमन विदाउट सिम्टम्स नहीं चल रहा होता, अगरचे डेंगू भी विदाउट सिम्टम्स नहीं, लेकिन बाद दफा जो बहुत माइल्ड फॉर्म्स हैं डेंगू की, वो उसमें बहुत माइल्ड फीवर ऑफ एंड ऑन विच में गो अनरिकॉग्नाइज्ड इवन 99 तक पेशेंट को फीवर हुआ और उसके बाद वो सेटल भी हो जाता है खुद से। लेकिन ड्रग्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल इन्फेक्शन जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कीमोथेरेपी मैम? कीमोथेरेपी वाली तो चलो बात इसमें एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज हम अगर बुकिश नॉलेज की बात करें तो उसमें कीमोथेरेपी सब चीजें आ जाती हैं, बट वी आर टॉकिंग इन रेफरेंस टू दिस पेशेंट ओनली। तो इसलिए इस पेशेंट से जो हम पूछेंगे ड्रग इनटेक का पूछेंगे, और इसमें कोई अगर फीवर उसको किसी वक्त हुआ, क्योंकि बाद दफा हल्का फुल्का सा फीवर हो तो वो पेशेंट बताता भी नहीं है, वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देता, तो वो भी एक वजह है जिसमें इसका टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए, उस वक्त करवाना चाहिए था। और इसके अलावा एनी एंडोक्राइन डिसऑर्डर व्हिच कैन लीड टू दिस थिंग? मैडम थायराइड। हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड प्रोफाइल भी इसमें हम करवाएंगे, क्योंकि देखो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की जो हम बात करते हैं तो उसमें पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है। इतनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से उसमें कुछ ना कुछ तो पेशेंट को सिम्टम्स होते, जो इन्होंने सारे तकरीबन नेगेटिव में पेशेंट ने आंसर किए, तो उसमें ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है। दो देयर में भी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अदरवाइज, क्योंकि सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ही नहीं होती, इसमें और भी बहुत सारी रीजंस होती हैं फॉर लो लेवल्स ऑफ फॉलिक एसिड। तो इसमें ये सारी चीजें होगी, एंड द थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये भी सारे के सारे। अब हमारी जो लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो इन सब चीजों के ऊपर बेस करेगी, तो इसलिए हमने ये सब चीजें इसमें ये करवानी है। व्हाट अबाउट द फंक्शन टेस्ट इन दिस केस? मैडम थायराइड फंक्शन टेस्ट मैंने कराए नहीं थे मैम, हम्म, मैंने नहीं करवाए थे उस पेशेंट के। नहीं वो ठीक है, मतलब मैं ये वैसे हम जनरली डिस्कशन कर रहे हैं, वो तो आपने एग्जाम में तो जो आंसर किया हम उसी को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ गलतियां आपकी हुई, ठीक है। तो ये सारी आपने इस तरीके से सोचना है कि इस पेशेंट में ये जो प्रॉब्लम हुआ, अदरवाइज शी इज एसिम्प्टोमेटिक बट शी इज हैविंग दिस पिक्चर ऑन CBC, so what can be the reason for this, and for that you have to think about the reasons for pancytopenia, और वो जो सारी रीजन हैं फिर उनमें से देखने के लिए कि क्या रीजन है वो आप सारे टेस्ट करवाओगे। बट देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है इसी से रिलेटेड, इसमें इन्वेस्टिगेशंस में ही, वो क्या है, इट इज स्टिल बीइंग मिक्स्ड। इसमें और क्या टेस्ट करवाएंगे, एक बड़ा जरूरी टेस्ट जो इस पेशेंट में होगा, बोन मैरो बायोप्सी। नहीं बोन मैरो पे तो नहीं, हम सीधा आ जाएंगे, और सिंपल टेस्ट इसमें पेरिफेरल स्मेयर आप जरूर करवाओगे टू सी एग्जैक्टली द पिक्चर ऑफ द डिफरेंट आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स। जी मैंने कहा था, उन्होंने कहा कि नहीं अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपने बोला तो सही ना, देखो अवेलेबल होना या ना होना एक और चीज है, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी अवेयरनेस शो कर रहे होते हो अगर आप एक टेस्ट मांग रहे होते हो तो, ठीक है, क्योंकि पेरिफेरल स्मेयर जो है वो अगर आपने मांगा तो वो पेरिफेरल स्मेयर एक जरूरी चीज है इन व्यू ऑफ दिस पिक्चर, तो वो आपने इसमें जरूर करवाना है। चले अब तो ये तो होगी इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें हम आते हैं मैनेजमेंट पे। शी इज ऑलरेडी एट 39 वीक्स, तो 39 वीक्स पे आपने इसकी मैनेजमेंट कैसे डिस्कस की? First of all, I will review the investigation which are missing. Then, as my patient is at 39 week previous to cesarean section and having one alive issue, and she having 9 gram hemoglobin with pancytopenia. So I will counsel the couple
regarding the diagnosis, that is most probably megaloblastic anemia, pancytopenia, most probably due to megaloblastic anemia. And now she मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक और चीज है, पैनसाइटोपिनिया एक और चीज है, ड्यू टू नहीं हम कह सकते, क्योंकि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो एक एनीमिया की टाइप है जो आपको पता चली बाय आरबीसीज इंडिसेस, but all other cell lines are also decreased. So how you will go for the management of this case now at 39 weeks? I will transfuse 1 unit of blood, whole blood, and then I will, as steroid prophylaxis is also given, and then I will take anesthesia fitness, and as my patient is asymptomatic, and by LMP she is 39 week, and I will do her elective cesarean section after blood transfusion. Next elective list. पेशेंट के प्लेटलेट 67,000 है, टीएलसी 3,000 है और हीमोग्लोबिन है उसकी 9 ग्राम। वन होल ब्लड से 5 to 8,000 प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके अब मुझे प्लेट भी चलो अगर हम इसको मैक्सिमम भी देखें तो ये 70 प्लस हो जाएंगे तकरीबन। मैम ये हो जाएंगे 78। And the patient has previous 2 cesarean sections. जी मैम। Has previous 2 cesarean sections. यस मैम, 2 सिजेरियन सेक्शन है, 1 ट्रांसफ्यूज करूंगी, मुझे 10 हीमोग्लोबिन हो जाएगी और प्लेटलेट्स भी रेज हो जाएंगे, रेड ब्लड सेल्स और टीएलसी तो भी रेज हो जाएंगी, और मैं 1 यूनिट अरेंजमेंट के साथ इसका 1 अरेंजमेंट होगा, 1 डोनर स्टैंड बाय होगा, फिर मैं इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन कर दूंगी। आपने इसको सेक्शन से कितनी देर पहले ट्रांसफ्यूज किया था? मैम अब मैं आज ही कर दूंगी, क्योंकि इसकी लाइफ टाइम प्लेटलेट्स की होती है 3 to 4 days होती है, तो मैं एक दिन करके नेक्स्ट डे मैं सिजेरियन कर दूंगी। नेक्स्ट डे? जी मैम, टाइम तो इसका पूरा है, 39 वीक है, तो फिर मैं उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इसका राइट ना हो, मतलब जैसे ही पेशेंट फिट होती है आप उसको कर दोगे सेक्शन जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि विद द प्लेटलेट 67,000 एंड यू आर गोइंग टू ट्रांसफ्यूज 1 यूनिट ऑफ ब्लड, ठीक है, यहाँ उसकी है 9 जी। तो इसमें आप प्रेफरेबली सपोज टुडे यू आर गोइंग टू प्लान सर्जरी एट suppose 9 a.m. in the morning. At what time you will transfuse blood in this patient? At least 24 hours. पहले जो है ना आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव आपके इसमें है क्या पेशेंट के। अब देखो इसमें पैनसाइटोपिनिया के साथ प्रीवियस 2 है और अब ये 3rd कंप्लीटेड उसकी जेस्टेशन है, तो उसमें आपके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मैम आई विल स्टोर हर। और दूसरी चीज, एक और चीज जो आपको सीबीसी, क्योंकि सीबीसी जब आप पूछते हो ना तो आप उसकी डेट जरूर पूछते हैं, बहुत पुरानी है, जिस दिन एक दिन पहले की बताई थी, उस दिन 15 तारीख थी, तो उन्होंने 14 की बताई थी मुझे। ठीक है, तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? बिकॉज जो इसमें एनीमिया के साथ साथ इसके प्लेटलेट भी कम है, सो व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? माय ऑब्जेक्टिव टारगेट लेवल क्या है इसमें? मैम एटलीस्ट प्लेटलेट 75 से अबव होने चाहिए। 75 से अबव, जी। Is it safe limit for a cesarean section on a patient who has previous 2 sections? You don't know कि उसमें क्या सिचुएशन आपको मिलेगी अंदर। मैम सिजेरियन के लिए तो लिखा हुआ है कि 75 से अबव हो और 50 एसवीडी के लिए होना एक और चीज है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एक और चीज है। मैम मैंने उस वक्त तो ट्रांसफ्यूज 1 किया था, लेकिन आई थिंक मुझे 2 ट्रांसफ्यूज कर लेने चाहिए सेफर साइड के लिए। और क्योंकि देखो 67 से अगर ये 70 प्लस भी हो गए, सपोज अगर हम सोचते हैं कि आपने 2 घंटे पहले भी ट्रांसफ्यूज कर लिया, 3 घंटे पहले भी ट्रांसफ्यूज कर लिया, तो फिर भी वो शायद 70 ज्यादा से ज्यादा 73 हो जाए एक ब्लड लगाने से। तो क्योंकि आप प्लेटलेट और एनीमिया को एक ही ट्रांसफ्यूजन के साथ ट्रीट करना चाह रहे हो।
जो probably एक सेफ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बेसिकली जब हम इस तरह के पेशेंट में बात करते हैं तो इसमें 9 ग्राम पे होल ब्लड लगाना जरूरी नहीं होता। उस वक्त हम लगाते हैं जब कोई कोएगुलेशन प्रॉब्लम्स हैं या प्लेटलेट हमने देने होते हैं। सो दिस पेशेंट फ्रेश ब्लड अगर आपका अरेंज हो जाता है, हीमोग्लोबिन रेज हो जाएगी और उसके साथ साथ प्लेटलेट भी उसके आप सोचें कि मिनिमम इसके 5 बढ़ जाते हैं, तो इसमें स्टिल इन माय ओपिनियन स्टिल शी विल बी इन अनसेफ लिमिट, क्योंकि ये अगर हम 5 की भी लिमिट सोचें, यू हैव टू थिंक अबाउट द लोअर लिमिट, तो ये 72 तक होगा। So what additionally needs to be done in this patient? So I should transfuse at least 2 to 3 whole blood, fresh whole bloods for the safer side and arrange. सारे के सारे आप 2-3 घंटे पहले ट्रांसफ्यूज करोगे? नहीं मैम, डेली बेसिस पे वन ट्रांसफ्यूजन इनकी डेली बेसिस पे होनी चाहिए। तो वो तब तक तो प्लेटलेट की लाइफ खत्म हो जाएगी जब तक आपने सेक्शन करना होगा। अगर उसकी 2 to 3 डेज होती है मैम, 3 to 4 डेज होती है प्लेटलेट्स की लाइफ। प्लेटलेट्स की लाइफ जब आप ट्रांसफ्यूज करते हो इन वाइवो इन विट्रो फर्क होता है, तो जब आप ट्रांसफ्यूज करते हो तो ये 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं रहते। इनकी लाइफ जो ट्रांसफ्यूज आप करते हो उनको तकरीबन आपने उस प्रोसीजर से पहले कम से कम 2-3 घंटे पहले जो है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे पहले आपने लगाना होता है। तो इसमें ज्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि हीमोग्लोबिन 9 है, आप इसको एक ब्लड ट्रांसफ्यूज करो, ब्लड से ज्यादा बेहतर होगा अगर पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूज कर दो, और उसके साथ साथ प्लेटलेट्स को इंडिविजुअली कंसीडर करो और इंडिविजुअली उसको मैनेज करो अलहदा से बाय ट्रांसफ्यूजिंग हर मेगा यूनिट। मेगा यूनिट विल बी इनफ फॉर हर। यस, 1 मेगा यूनिट इन केस 30,000। इसमें इस पेशेंट में सेफ यही चीज है बजाय इस, क्योंकि जब आप इस तरह की सिचुएशन में ये चीज बोलते हो कि मैंने अब इसको 2 ब्लड लगाने हैं, 3 ब्लड लगाने हैं, यू आर नो वेयर बिकॉज यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन, या प्लेटलेट्स को हम कितना टाइम पहले हमने ट्रांसफ्यूज करना होता है। सो इन दिस केस ट्रांसफ्यूज 1 ब्लड 1 day prior to the surgery and mega unit 2 hours before the surgery. That will be an appropriate management in this case. हम तब ही इसको appropriately manage कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली फिर वही बात आ जाती है ना कि एक तो हमने जो इन्वेस्टिगेशन से रीजन फाइंड आउट की उस पर भी मैनेजमेंट डिपेंड करेगी। सपोज उसमें कोई भी ऐसी वजह आ जाती है तो उसको आपको सेपरेटली मैनेज करना पड़ेगा, बट इन दिस केस व्हेन यू फाइंड नो अदर रीजन, आपके बाकी सारे टेस्ट या अवेलेबल नहीं है या है नहीं या आपने करवाए नहीं है, या वो फर्ज किया अगर नॉर्मल भी आ जाते हैं, तो इसमें इसको आप 1 दिन पहले ब्लड लगाओ और सर्जरी से 2 घंटे पहले आप इसको मेगा यूनिट दो। सो यू आर सेफ ऑन बोथ साइड्स कि आपने हीमोग्लोबिन को भी वो कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया, और आपने इसके प्लेटलेट्स को भी मैनेज कर लिया, लो प्लेटलेट्स को। इस तरह से फिर आपने इसको, ये कंपोनेंट थेरेपी कहलाती है, क्योंकि आप एक ही ब्लड से सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। जी, मैंने भी गलत किया वहाँ पे। मैम एक और बात मैंने आपसे पूछनी थी कि मुझे LMP से 39 मिल रही थी और बाय BPD फीमेल लेंथ जो दी रिसेंट स्कैन में उससे 37 मिल रही थी, तो वो बार बार मुझे यही कह रहे थे कि आप जैसे आज 15 तारीख है, आप कब इसका ऑप्टिमाइज सपोज आप कर लिया, इस तारीख को आप इसका सिजेरियन सेक्शन करेंगे। बस जैसे ही आप ऑप्टिमाइज करते हो आपने सेक्शन कर देना, क्योंकि अगर ये 39 वीक्स पे है, और देखो जो अगर पेशेंट को श्योरिटी ऑफ डेट है, अब इसमें कितनी को श्योरिटी ऑफ डेट्स होती है पेशेंट को, दैट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स एजुकेशन, उसका कितना को वो है, कितना को मतलब कॉम्पिटेंट है चीजों के बारे में, वो फिर आपको, क्योंकि अदरवाइज अल्ट्रासाउंड परफॉर्म्ड एट दिस जेस्टेशन यानी एट अराउंड 39 वीक्स, उसमें तो 2 to 3 वीक्स का एरर आ सकता है जी। So if the patient is sure of dates, you will rely more on the dates calculated by the LMP. आप उसकी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो कैलकुलेट हुई बाय,
क्योंकि इसमें डेटिंग स्कैन अवेलेबल नहीं है, एनॉमली स्कैन अवेलेबल नहीं है जिसपे आप उसको फर्दर कंफर्म कर लेते हैं। मैम उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि सपोज मैं अभी आपको नॉर्मली स्कैन देती हूँ, उससे डेट कैलकुलेट करोगी या एलएमपी से निकाल के आप सिजेरियन के लिए क्या ना, डेट? मैं डबल चेक करूंगी। इसलिए करो। फिर उस सूरत में अगर एनॉमली स्कैन फर्ज किया वो दे देते हैं 20 वीक्स का, उस पे कितना एरर होता है? कम से कम उसमें हफ्ता 10 दिन का फिर भी एरर होता है। 2 वीक इवन जी मैम। 20 वीक्स का भी जो स्कैन है, 18 जी टू 22 वीक्स का स्कैन, तो डिपेंड करता है कि वो आपको किस टाइम पीरियड का वो करते हैं। बट सपोज इफ दे से दैट अगर हम एनॉमली स्कैन आपको दे दिया तो फिर आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? फिर आपने देखना है कि पेशेंट की श्योरिटी ऑफ डेट, इफ शी इज डेड श्योर, उसने कहीं लिख के रखा हुआ है, उसको पता है कि उसने प्रेगनेंसी टेस्ट कितने दिन ऊपर चढ़े तो उसने वो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आ गया। तो ये सारी चीजें हैं जिससे ये डबल चेक हो जाएगा। तो फिर भी उसमें एरर तो फिर भी आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर वो एरर 3-4 हफ्तों से ज्यादा का है तो फिर आप रिलाई करोगे मोर ऑन एनोमली स्कैन। क्योंकि पेशेंट को कितनी भी श्योरिटी ऑफ डेट्स हो, स्टिल हाउ मेनी पेशेंट्स आर श्योर ऑफ डेट्स? यू मस्ट नो दिस थिंग कि पेशेंट को, जो हमारी जो आम पॉपुलेशन है उसमें कितने को पेशेंट जो हैं वो श्योर ऑफ डेट्स होते हैं। सही। तो इसलिए फिर आपने ये देखना है कि इसमें फर्क जो एनॉमली स्कैन से जो डेट आप कैलकुलेट कर रहे हो और जो उसकी ड्यूरेशन एलएमपी के हिसाब से जो डेट कैलकुलेट कर रहे हो उसमें कितना फर्क है। अगर हफ्ते या 10 दिन का फर्क है तो इसका मतलब है शी इज करेक्ट अबाउट हर एलएमपी। अगर वो 3-4 हफ्ते का फर्क है तो इसका मतलब है कि शी इज नॉट श्योर ऑफ हर एलएमपी। हो सकता है उसको पूरे 1 महीने का गैप चल रहा हो, तो इसलिए जो है वो फिर आपने उसके हिसाब से फिर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है राइट जी मैम। चलो जी, अब इसको आपने इसको इस तरह से कर दिया कि आपने इसको मेगा यूनिट लगा दिया और ब्लड लगा दिया, और आपने एक ब्लड ही लगाया, बाकी आपने स्टैंड बाय रखा, क्योंकि आप कम से कम मिनिमम उसको सेफ लिमिट पे लाना चाह रहे हो इन व्यू ऑफ आर प्रीवियस 2 सिजेरियन सेक्शन। आपको नहीं पता अगर ये फर्स्ट किया ये फर्स्ट सिजेरियन सेक्शन ही होता, तो पहला सिजेरियन सेक्शन अगर करना है और उसमें कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है, फॉर एनी सिंपल रीजन ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन के लिए आपने करना है, तो उसमें हीमोग्लोबिन 9 के साथ आप कर सकते हो कि नहीं? मैम प्राइमी का कर सकते हैं। कर सकते हैं, उसमें आप फिर स्टैंड बाय रखते हो ब्लड। लेकिन जब पेशेंट इस तरह का हो और उसमें जो है वो ब्लीडिंग के भी चांसेस हों ज्यादा होने के, तो फिर आपने हीमोग्लोबिन को ऑप्टिमाइज किए बगैर, और इसमें एक और भी इंडिकेशन है कि आपने इसमें प्रीवियस 2 सेक्शन भी हैं, प्रीवियस 2 सेक्शन में आपको पता नहीं होता कि कितनी एडहेजन्स आपको मिले, तो इस वजह से फिर आपने इसको ऑप्टिमाइज करके ही फिर आगे चलना होता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करेगा। तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितने पे लगानी है दैट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, आपने इंडिविजुअलाइज करना होगा। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, क्योंकि एग्जाम में हमने देखा है कुछ कैंडिडेट्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं इसके बारे में कि वो 7 ग्राम हीमोग्लोबिन पे भी सेक्शन कर रहे होते हैं। दैट इज नॉट सेफ, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेफिनेटली आप फॉर सर्टन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ही लगा रहे होते हो। तो अगर उसमें नॉर्मल डिलीवरी में उसकी लिमिट सेफ लिमिट और है, फॉर सिजेरियन सेक्शन सेफ लिमिट उसकी और है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड लॉस ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन विच इज ऑलमोस्ट डबल देन दैट इन द नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी। तो उस चीज को जहन में रखते हुए जो सेफ लिमिट ऑफ हीमोग्लोबिन होगी फॉर सिजेरियन सेक्शन एंड फॉर नॉर्मल डिलीवरी विल बी डिफरेंट। तो इसको इस तरह से इंडिविजुअलाइज हमने करना होता है। चलें जी, अब इसमें अब आपने सेक्शन किया, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन के दौरान में यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। इनिशियली यू हैड मैनी एडहेजन्स, और वो सारी इसमें जो है पेरी यूट्राइन एडहेजन जो है वो आपको मिलती हैं, और उससे ब्लड लॉस, एंड लेटर ऑन द पेशेंट हैड postpartum hemorrhage. What you are going to do in this patient? Ma'am, I have already take consent for PPH, and I have already arranged 1 unit of blood and donor standby. So
I will first I will give you Utotonics and then uterine massage and then parectal tablets. Uh, Uterus is contracted, but still the patient is bleeding. मैम सिजेरियन खत्म हो चुका है या खत्म हो चुका है, पीपीए तो होता ही पोस्टमार्टम हेमरेज है। जी then I will transfuse blood and give transamine and antibiotics and एंटीबायोटिक का पीपीएच में क्या रोल है? पीपीएच में नहीं है लेकिन पोस्टमार्टम उसका साथ में मैं दूंगी। वो तो बाद की बात है ना, वो या तो आप इनिशियल उसका शॉट लगाते हो या बाद में कंटिन्यू करते हो, हम तो पीपीएच की बात कर रहे हैं। जी मैं वजाइनली एक्सप्लोर करूंगी। यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टेड बट द पेशेंट इज ब्लीडिंग। यस मैम उसको यूट्रोटॉनिक्स दूंगी और वजाइनली एक्सप्लोर करूंगी कि कोई लोकल कार्स तो नहीं है, कोई मेम्ब्रेन्स तो नहीं अंदर रह गए। आप तो सेक्शन कर रहे हो, तो विजाइना में आप क्या आपको मिलेगा? सेक्शन तो हो चुका है ना, सेक्शन होने के बाद मेरे माइंड में कि वो मतलब रिकवरी रूम में आ चुकी है उस वक्त। नहीं, इंट्रापार्टम हम ये बात कर रहे हैं, आपने सेक्शन कर लिया। सेक्शन करने का मतलब ये है कि बेबी हैज बीन डिलीवर्ड, but still you are in the process of doing that cesarean section, yet not completed, but the patient has started profuse bleeding and uterus is contracted. हम उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं। यस मैम मैम उसमें हम इंट्रायूट्राइन इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं यूट्रोटॉनिक्स एंड और ब्लीडिंग का सोर्स देखूंगी कि है कि नहीं है। अगर ब्लीडर्स हैं बेड पे तो उन पे मैं प्रेशर भी दे सकती हूँ, मैं वहाँ सूचर भी लगा सकती हूँ और मैम ब्रेस सूचर भी लगा सकते हैं हम। अगर वो कंट्रैक्शन या प्रेशर से मेरा ब्लीडिंग रुक जाती है तो मैं ब्रेस सूचर लगा सकती हूँ और बैलून टेम्पोनेट की ऑप्शन है हमारे पास। इन सब से इफ रुक जाती है तो ठीक है। बैलून टेम्पोनेट आप कौन सा वाला यूज करते हो? उससे पहले आप इसकी इस सिचुएशन बेसलाइन सिचुएशन को रिव्यू नहीं करोगे? मैम साथ में मैं उसके सपोज मैं जो बात कर रही हूँ बार बार वो ये कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है और अपेरेंटली आपके सेक्शन में भी जो आपको एडिशंस मिली वो आपने सक्सेसफुली कर ली मैनेज, लेकिन ये है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है एंड द पेशेंट इज ब्लीडिंग। मैम आपको बेसलाइन सिचुएशन इसकी पता है, आपने अगर एक मेगा यूनिट लगाया भी हुआ है तो टेस्ट कुछ और ऑप्शन हैं? मैम उसके टेस्ट भेजूंगी, उसके टेस्ट तो आते आते टाइम लगेगा ना, ट्रांजामीन भी लगाऊं। ट्रांजामीन 1 ग्राम ट्रांजामीन लगाऊंगी भी हो गया। और स्टीरॉइड्स मैम लगाते हैं इसमें। इसको बेटा FFP लगाओ और इसको आप रिव्यू करो फॉर गिविंग मेगा यूनिट अगेन। अब इसके लिए आपने पहले से बंदोबस्त किया होगा 1 मेगा यूनिट हैज बीन ट्रांसफ्यूज्ड and the other is in pipeline, so that if you encounter such a situation which you have, तो कम से कम उस सूरत में आप इसको ये दे सको। और तीसरी चीज ये कि आपने क्योंकि बेसिकली जो आपके ज़हन में कोएगुलेशन डिस्टर्बेंस है, बाकी जो सारी चीजें हैं कि उसमें कोई आपने यूट्रस को इवैक्यूएट करके देख लिया, यूट्रस वेल कॉन्ट्रैक्टेड है, कोई उसमें अपेरेंटली कोई टीयर नहीं है, कुछ नहीं है, और जाहिर है विजाइना में तो आपने कुछ नहीं, लोकल रीजन ऐसी होती तो पहले से ही हमें पता चल जाता, वो अब लोकल रीजन सेक्शन के बाद ही तो नहीं फौरन आ जाती। तो उसमें आपका पहले, हालांकि सबसे लेस कॉमन रीजन होती ही कोएगुलोपैथी है फॉर पीपीएच, लेकिन इस केस में ये सबसे पहले आपके जहन में आएगी आफ्टर रिव्यूइंग ऑल अदर कॉजेज के इसमें ऑलरेडी एक कोएगुलोपैथी एग्जिस्ट करती है, तो उसी को आपने सबसे पहले एड्रेस करना है और मैनेज करना है। इसलिए देखो ये होता है आपकी बेसिकली ओरिएंटेशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर केस कि इस पेशेंट में ये सारा कुछ है, तो आपने पीपीएच की तो काउंसलिंग पहले से कर ली हुई है, और पीपीएच की काउंसलिंग आपने क्यों की? उसके प्लेटलेट के बेस पे की। आपने पीपीएच की काउंसलिंग उसकी ए टोनिंग या बाकी चीजों की वजह से नहीं की, क्योंकि वो आपके दिन में नहीं है। यस मैम एफएफपी लगाना, ठीक है, तो फिर आप उस तरह से मैनेज करोगे। ठीक है,
अब हमें ये बताएं कि आपको इसमें सवाल क्या फेस करने पड़े। ये बेटा आपका मेरा ख्याल है माइक कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत इसमें नॉइज। मैम बस उन्होंने बस यही क्वेश्चन किए थे, ज्यादा नहीं किए थे, बस आराम से टाइम भी बच गया, वो बैठ गए, मैं समझी मैं पास हूँ लेकिन पास नहीं थी। नहीं, बट हाउ डू यू नो, क्या आपके पास डिटेल रिजल्ट आ चुका हुआ है कि ऑप्स में आपका केस फेल है और गायनी में पास है, या दोनों ही फेल है? जी मैम ऑप्स का फेल है अच्छा, तो 50 मार्क्स डेफिनेटली है। इसमें देखो, जो एग्जाम में जो चीज चेक की जाती है ना कैंडिडेट्स की, वो ये कि वो कितना कुछ सेफ है, उनकी सेफ्टी कैसी है। यू मे नॉट बी नोइंग वेरी हाई टेक थिंग्स, लेकिन उसकी उनकी जो सेफ्टी होती है ना, कि आपने कितनी हीमोग्लोबिन पे पेशेंट को खोला, अगर पीपीएच हो गया तो उसमें आप क्या करोगे, इस पेशेंट में जो है वो आपकी मैनेजमेंट क्या होगी, जिसमें कुछ फ्लॉज डेफिनेटली थे। तो इसको इस तरह से स्मूथली आपने यू शुड बी वेरी क्लियर हेडेड कि इस मरीज में ये मसला है और मेरा ये टारगेट है जो मैंने इसमें अचीव करना है, और इसको मैंने इस तरह 1 2 3 ऐसे लेके चलना है, ये मेरी मैनेजमेंट इसमें होगी, इसके बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको एक प्रॉब्लम ऑलरेडी पता चल गया कि इसमें ये है, इसकी वजह से इसको ये ब्लीडिंग होगी, इसलिए मैं इसकी प्रिवेंशन पहले से कर लूं, और अगर इसको ड्यूरिंग सर्जरी मुझे ये प्रॉब्लम होता है तो फिर मैंने इसका एक बैकअप रेडी रखा हुआ है, और फिर मैं इसको ऐसे ये कर सकती हूँ। यस मैम, मैंने शायद ये ब्लड लगाया इसलिए उनको पसंद नहीं आया। दूसरा शायद मैंने फोलिक एसिड फिर आज ही स्टार्ट कर देती। फोलिक बिल्कुल एसिड आपको वो स्टार्ट करना चाहिए, वो तो राइट नाउ स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है इनिशियली तो आप ओरल थेरेपी दोगे, और वो शायद इतनी बहुत ज्यादा इफेक्टिव इसलिए भी नहीं होगी कि पेशेंट ऑलरेडी बिल्कुल उस एज पे है जहां पे आप उसका सेक्शन अप करने जा रहे हो, 39 वीक्स पे है। लेकिन ऐसे केसेस जिसमें आपको लगता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद द एब्जॉर्प्शन, यू कैन इवन गिव इंजेक्शन फोलिनिक एसिड, जो कि हम अमूमन जिन पेशेंट्स को मेथोट्रेक्सेट दे रहे होते हैं उनको हम ये लगाते हैं फोलिनिक एसिड के इंजेक्शंस। जी मैम वो देते भी लग सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी लग सकते हैं, दीज आर अवेलेबल। हैं। मैम फिर किस तरह की डोज होती है इनकी? फिर हम इसको जो है वो इंजेक्शन फोलिनिक एसिड दे सकते हैं, इसकी डोज एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, और लेकिन ये मैम बॉडी वेट के टेस्ट, हिसाब से होती है। अब ये टेस्ट का वो बार बार मुझे कह रही थी कि आप कौन सा टेस्ट कराओगे फोलिक एसिड के लिए? हाँ, फास्टिंग का था, ब्लड टेस्ट, रेड ब्लड बेसिकली सेल्स। फास्टिंग का तो इतना जरूरी नहीं है, वो तो रैंडम भी आप किसी भी उस पे कर सकते हो, उसमें वो कोई कहते हैं कि डाइट के फास्टिंग का तो साथ भी चेंज हो जाते हैं इसकी वैल्यू, नहीं, लेकिन इसलिए। अगर डाइट के देखो, डाइट तो तब होगी ना विच इज रिच इन द फॉलिक एसिड, लेकिन पेशेंट में अगर ऑलरेडी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब है कि या डाइट डेफिशिएंट है उसकी, या उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो दोनों चीजों से उसका जो है वो उसके फॉलिक एसिड लेवल चेंज नहीं होंगे। जी मैम। तो इसलिए वो भी आप लेवल इसमें ये करवाओगे। जी तो इसलिए इसको जो है वो आपने फोलिनिक एसिड पहले आपने इंजेक्टेबल दे दिया, इंट्रावीनस दे दो क्योंकि ऑलरेडी ये कम है, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को आपने बेहतर है कि अवॉइड ही करना है, और बाकी अगर और कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है उसको आप मैनेज करोगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर फर्ज किया एक आध क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो भी जाता है कि आपको ये नहीं पता कि फोलिनिक एसिड जो है वो फास्टिंग में कराना था या रैंडम करवाना था, अगर एक इस चीज का जवाब नहीं आया तो ये इससे कोई कैंडिडेट फेल नहीं होता। ओवरऑल एक इम्प्रेशन होता है कैंडिडेट का कि जैसे आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपना केस प्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंड यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर पेशेंट, आपको उसकी हिस्ट्री के हिसाब से उसका डायग्नोसिस बनाना भी आता है, और उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन भी सारी की सारी बोल ली, और वो बोली जो जरूरी है उस पेशेंट के लिए और गैर जरूरी नहीं है, ना कम ना ज्यादा। और उन इन्वेस्टिगेशन से फिर आपने एक फाइनल कंक्लूजन की कि ये चीज जो है ये इसमें हो सकती है। क्योंकि सपोज अगर फर्ज किया कुछ भी इसमें नहीं पॉजिटिव आता, ना हिस्ट्री पे आपको मिलता है, ना उन टेस्टों से आपको कुछ मिलता है, तो फिर इसमें क्या वजह है पैनसाइटोपिनिया की? अब मेगैलोब्लास्ट जो हैं वो डेफिनेटली फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में हो सकते हैं, और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इफ दैट इज स्वेयर एनफ टू कॉज पैनसाइटोपिनिया, और उसके साथ अब ये आइसोलेटेड फॉलिक एसिड भी हो सकता है, और इसके अलावा B12 डेफिशिएंसी भी हो सकती है इन कॉम्बिनेशन और आइसोलेटेड। तो इसलिए उनके बी लेवल्स करवाने जस्टिफाइड होते हैं, क्योंकि B12 इन कॉम्बिनेशन विद फॉलिक एसिड इट हेल्प्स इन द DNA RNA सिंथेसिस।
तो इस वजह से जो है वो उसके लेवल करवाने में भी हर्ज कोई नहीं, बट यू मस्ट नो द रीजन एंड जस्टिफिकेशन फॉर ईच एंड एवरी इन्वेस्टिगेशन कि ये मैं क्यों करवा रही हूँ, सिर्फ ऐसे नहीं कि इसको बस आप करवा लें। तो इसलिए जो है वो आपने आपको ये डायग्नोसिस बना के फिर उसकी मैनेजमेंट, आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इस मरीज में क्या है, नंबर 1 2 3 वेरी क्लियर। फिर उसके बाद आपने जब इसकी मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट आपने कैसे की वो भी आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। सो देयर वर फ्लॉज इन ऑल दिस डिस्कशन, यू कैन नॉट फेल जस्ट ऑन 1 और 2 क्वेश्चंस अगर आप उसके आंसर नहीं करते हो। वो जब इतनी लंबी डिस्कशन चल रही होती है आधे घंटे की, तो उसमें एक दो चार क्वेश्चंस का ड्रॉप कर जाना भी इतने बड़ी बात नहीं होती, प्रोवाइडेड कि वो क्वेश्चन वाइटल इंपॉर्टेंस वाले ना हों। यानी अगर आपसे मैनेजमेंट पूछी गई और मैनेजमेंट में आपने बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया तो वो एक सवाल भी आपको काफी है फेल करने के लिए। लेकिन अगर एक आध इन्वेस्टिगेशन जो आप नहीं करवा सके या उसका आंसर नहीं दे सके तो वो इतना बड़ा ब्लंडर नहीं होता। तो इसलिए जो है वो उसमें डिपेंड करता है कि आपके कौन से सेगमेंट, जो वाइवा का कौन सा सेगमेंट है जिसमें आपने आंसर नहीं किया, उस पर डिपेंड करता है आपका फेल या पास होना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा किसी वक्त बैठ के रिव्यू करो कि उन्होंने जो सवाल पूछे उसमें किस किस के आंसर आपने क्या क्या दिए। वहीं से आपको थोड़ा सा जाहिर है आपको आप ज्यादा बेहतर जानते हो कि जो सवाल पूछे उनको बल्कि लिख लो कि ये जी सवाल पूछा और ये मैंने जवाब दिया। जी मैम। हाँ जी, अगर किसी का कोई My और question क्वेश्चन may है तो be आप very basic. Half-life of platelets in the body and outside the body. इन द बॉडी तकरीबन ये इसकी तकरीबन 5-6 दिन होती है और आउटसाइड द बॉडी इसकी तकरीबन अप टू मैक्सिमम अप टू 6 आवर्स होती है मैक्सिमम। तो मैम हम यही ट्रांसफ्यूज वजह है करने कि के जब हम विदिन ट्रांसफ्यूज आफ्टर करते 2 आवर्स सीजर करेंगे हैं सर्जरी, ये यानी ट्रांसफ्यूज करने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के आफ्टर 2 आवर्स हम सर्जरी करेंगे? नहीं, देखो जो सबसे आपका क्रूशियल टाइम है ना वो ये है ड्यूरिंग सर्जरी एंड 2 आवर्स आफ्टर सर्जरी, वो पीरियड आपका उस प्लेटलेट के साथ कवर होना चाहिए। तो यही वजह है कि इसमें अगर हम 2 घंटे पहले लगा लें या इवन अगर 1-1.5 घंटा भी पहले लगा लेते हैं तो ठीक है। और ऐसे पेशेंट में जिसमें हमें और कोई वजह ना मिले, उसमें इवन बाज़ दफ़ा इसमें तो प्लेटलेट उस लो लेवल के नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा कंसिडर किया जाता है कि इसमें हम कोई स्टीरॉयड वगैरह दे दें, लेकिन इसमें डायरेक्ट स्टीरॉयड की इंडिकेशन नहीं बन रही क्योंकि इसमें आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ दैट डिस्टर्ब्ड पिक्चर जो कि उसमें पूरी की पूरी है। बट लेटर ऑन इफ इट डजंट रिकवर, क्योंकि देखो ये अब प्रेगनेंसी में इस वक्त द पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, तो इसमें लेटर ऑन इसका जो फाइनल डायग्नोसिस होगा वो होगा ही बोन मैरो बायोप्सी के साथ, क्योंकि सारी सेल लाइन जो डिस्टर्ब्ड है उसमें फिर बोन मैरो को हमने देखना होता है। और जब हम अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं तो उस पर भी हमने लिवर और स्प्लीन के का साइज और उसको भी हमने देखना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम बाद में इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम इस पेशेंट का कॉन्ट्रासेप्शन की मतलब इसके लिए कौन सी सुटेबल होगी? ये प्रीवियस 3 है और साथ में इसका ये प्रॉब्लम भी अब है। इसमें कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली वो जो इसकी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग को भी कम कर दे। अब हमें इसका अदरवाइज हमें नहीं पता कि इसकी बेसलाइन पैथोलॉजी क्या है। Probably hormonal contraceptives will not be a preferable choice in this case, क्योंकि अगर कोई लिवर फंक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है या अगर कोई और अंडरलाइन हमें नहीं पता कि अभी पैथोलॉजी क्या है, बिकॉज द पेशेंट हैज नॉट बीन स्क्रीन्ड इन डिटेल, उसमें बहुत सारे उसके टेस्ट हुए भी नहीं हुए। लेकिन अगर ऐसा पेशेंट हो तो उसमें एक तो आप माइरिना इंसर्शन कैन बी वन थिंग जो कि उसके अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस को भी लेटर ऑन कम कर देगी। एंड हाउ द थिंग्स गोज ऑन पोस्टपार्टम पीरियड में ये भी हमें नहीं पता। तो पेशेंट के साथ उसके साथ डिस्कशन करके, अब जाहिर है एक पेशेंट 30 इयर्स की है, वन लाइव इशू है, यू आर नॉट गोइंग टू डू बीटीएल, वो तो आप नहीं इसमें करोगे। लेकिन जो आपने इंटरवल कॉन्ट्रासेप्शन चूज करनी है उसमें प्रोबेबली हार्मोनल प्रेपरेशंस जो अपेरेंटली अभी तक की सिचुएशन लग रही है आर नॉट अ प्रेफरेबल चॉइस। So Mirena can be inserted in this case, or she can be advised about using the barrier methods. वो बैरियर मेथड की एक यूज करने के लिए पेशेंट और उसके हस्बैंड की काउंसलिंग भी जरूरी होती है। इफ दे एग्री अपॉन दैट मेथड ओनली देन यू कैन एडवाइज अबाउट दैट मेथड।
ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। मैडम तो ट्यूबल लाइगेशन बहरहाल आप इसमें नहीं बोलोगे क्योंकि एक लाइव इशू है और अभी ये इसका न्यू बॉर्न का तो नहीं पता ना। मैडम जैसे ये पेशेंट है, उनकी HP जो 9 है, अगर पेरिफेरल सीनियर में हमारे पास मैक्रोसाइटिक आ जाता है तो फिर क्या हम सीरम फेरेटिन मांगेंगे एग्जामिनर से? मैक्रो मेगैलोब्लास्ट की आप बात कर रहे हो? जी जी, मेगालोब्लास्ट। मेगैलोब्लास्ट हैं तो फिर तो जाहिर है आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, बट स्टिल यू विल लुक फॉर इट बिकॉज क्योंकि इसमें अब फॉलिक एसिड का अब आगे से एक बहुत लंबी डिस्कशन है कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इन व्हाट कंडीशंस यू कैन टेक द डिटेल हिस्ट्री रिगार्डिंग हाउ दिस हैपेंड, क्योंकि इसकी प्रीवियस हिस्ट्री ऐसी सजेस्टिव नहीं है, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी एनीमिया का पेशेंट आता है, चाहे वो मेगैलोब्लास्ट ही क्यों ना, स्टिल यू विल गो फॉर द सीरम फेरिटिन लेवल बिकॉज टू डिटेक्ट द कोएग्जिस्टेंट आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि उस पे आपकी अब बाकी जो है वो सारी जो मैनेजमेंट है वो उस पर डिपेंड करती है। अगर सीरम फेरिटिन भी लो आ जाता है लेटर ऑन, अभी तो आपने ब्लड लगा दिया कि आपने इसको सेक्शन करना है, फौरन तो नहीं आप इसको इंजेक्टेबल वो दे के तो उसको करेक्ट कर सकते, बट लेटर ऑन द फाइनली इफ दैट इज टू लो तो फिर आप उसमें उसको उसके हिसाब से उसकी ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी डिसाइड करोगे बेस्ड ऑन सीरम फेरिटिन लेवल। दैट इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन फॉर एनीमिक पेशेंट्स। थैंक यू और मैडम। मेगैलोब्लास्ट में तो जाहिर है फिर सीरम फोलेट लेवल आप करवाओगे। थैंक यू मैडम। मैडम एक चीज और क्लियर कर दें, ये थायराइड डिसऑर्डर कैसे पेनसाइटोपिनिया कराता है? देखो थायराइड डिसऑर्डर जो है ना, ये ओवरऑल सारे सेल मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है ओवरऑल, ठीक है, सारे सेल मेटाबॉलिज्म को। और जहां तक सिम्टम की बात है कि इसमें सिम्टम्स नहीं है, उमूमन सब क्लिनिकल में तो होते ही नहीं है, बट देयर आर केसेस वेयर द TSH इज ग्रॉसली रेज्ड एंड द पेशेंट इज नॉट हैविंग अ सिंगल सिम्टम। तो पेशेंट अगर फर्ज किया सिम्टम नहीं भी है तो हम उसको इसके थायराइड फंक्शन करवाएंगे। थायराइड फंक्शन अगर डिस्टर्ब आ जाते हैं, that is basically slowing down the metabolism of each and every cell in the body. That is apparently the mechanism by which even the bone marrow suppression can occur. ओके, थैंक यू मैडम। चलें, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैम मायरीना हम पोस्टमार्टम रखेंगे या इंटरवल रखेंगे? इंटरवल will be a better choice. जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी वेस्टर्न। मैम ये बताएं कि फॉलिक एसिड और रेड सेल फोलेट में हमारी कौन सी ज्यादा रिलायबल रिपोर्ट होती है? बेसिकली दोनों की ही एक ही जैसी वो है, क्योंकि सीरम जो RBC फोलेट लेवल है, जो रेड ब्लड सेल्स फोलेट लेवल है, वो तो आपको स्पेसिफिकली बता देंगे, लेकिन सीरम फोलेट लेवल जो है वो ओवरऑल जो एक फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है उसके बारे में आपको बता रहे होते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो सीरम फॉलिक एसिड लेवल है उस पर आप उसकी थेरेपी भी डिसाइड करते हो। तो डेफिनेटली जो रेड ब्लड सेल्स की जो फर्दर स्टडीज हैं उसमें उसकी रेड सेल विड्थ भी आ जाती है, फिर उसमें उसके फॉलेट लेवल्स भी आ जाते हैं। तो वो एक हाईटेक स्टडीज हैं जिनकी तरफ हम अमूमन नहीं जाते, एंड वी कीप आवरसेल्व्स टू द सिंपल स्टडीज ऑफ सीरम फॉलेट लेवल। ठीक है, तो वो उसमें जैसे किसी भी टारगेट ऑर्गन के फंक्शन से देखो, कुछ बहुत हाई प्रोफाइल टेस्ट होते हैं जो कि जिनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन अगर ये फर्ज किया खास तौर पे ये जो RBC फोलेट लेवल हैं ये ज्यादा स्पेसिफिकली होते हैं जहां पे हिमोलिटिक एनीमियास वाली चीज आ जाती है, तो वहां पे भी इसको आपने देखना होता है। और अगर सीरम फोलेट लेवल जो हैं वो अगर आपके कम आ जाते हैं तो वो ओवरऑल आपको पता है कि फॉलिक एसिड लेवल कम है, आपने उसकी थेरेपी देनी है। अल्टीमेटली इट विल करेक्ट द रेड सेल साइज एज वेल। ठीक है मैडम RBC फोलेट लेवल होती है हमारे यहाँ? नहीं, सीरम फोलेट लेवल तो होते हैं, RBC फोलेट लेवल नहीं होते, और ये कोई दूसरी जस्टिफिकेशन होती है फॉर नॉट डूइंग इट इन ऑन अ रूटीन बेसिस। ठीक है, तो अब हम इसको फिर स्टॉप करते हैं इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैडम। Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू मैम।